न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका ब्रेक के बाद देश और प्रदेश की खबरों में। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। अंतरिक्ष से आया शुभांशु शुक्ला का नमस्कार, वीडियो में बताया कैसी रही यात्रा। आज की स्थिति आपातकाल से बदतर, बोले प्रमोद तिवारी। दिल्ली के CM रेखा गुप्ता की नशा मुक्ति की अपील। तो खबरें विस्तार से। अंतरिक्ष से आया शुभांशु शुक्ला का नमस्कार, वीडियो में बताया कैसी रही यात्रा। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष में एक रात गुजार ली। इसी के बाद अब उनका वीडियो मैसेजेस सामने आया है। शुभांशु शुक्ला का अंतरिक्ष से नमस्कार आया है। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 मिशन के तहत स्पेस में गए हैं। स्पेस में पहुंचने के बाद उनका वीडियो मैसेज सामने आया है। वीडियो मैसेज में मिशन के लिए उत्साहित शुभांशु शुक्ला ने मुस्कुराते हुए कहा है कि अंतरिक्ष से नमस्कार। इस वीडियो मैसेज में शुक्ला ने कहा है कि अंतरिक्ष में चहलकदमी करना और खाना पीना एक बच्चे की तरह सीख रहा हूँ। साथ ही उन्होंने कहा है, मैं बहुत सो रहा हूँ। यह एक छोटा कदम है, लेकिन भारत के मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम की दिशा में एक स्थिर और ठोस कदम है। Everyone, namaskar from space. I'm thrilled to be here with my fellow astronauts, as Peggy said, 1 veteran and 3 rookies, and wow, what a ride it was. Frankly, when I was sitting in the capsule in Grace yesterday on the launch pad, my only thought in my mind was that let's just go. After 30 days of quarantine, it was a feeling that I just wanted to go. You know, the excitement and all was, probably far away. It was just the feeling that let's just leave here. But when the ride started, it was something like you're getting pushed back into the seat. It was an amazing ride. And then suddenly, nothing. Everything silenced, and you were just floating. You unbuckle, and you were just floating in the silence of vacuum. It was an amazing feeling. I wanted to take this opportunity to thank everyone who has been a part of this. I understand that this is not a personal accomplishment. It is a collective achievement of each and every one of you who has been a part of this journey. And to make this possible, I really want to thank each one of you. Also to family and friends, your support has mattered so much. This is so much because of all of you guys. We showed you joy and grace. This is swan, a great symbol. It looks really cute, but we have a very important swan in our Indian culture, which we are about. Swan symbolizes wisdom. It also has the ability to discern needs to be focused on and what does not. So basically, the golden age of distraction, I would say. So this means a lot more, not just a zero-G indicator for us. And I think that we all have symbolism in Poland and in Hungary, in India as well. So I think this looks like a coincidence, but it is not. That it has more meaning than what we are attaching it to it. The capsule itself, Grace, has been very kind. I have been feeling, I was not feeling very great when we, got shot into the vacuum. But since yesterday, I've been told that I've been sleeping a lot, which is a good sign. So I think that's a great sign. I'm getting used to this quite well, enjoying the views, enjoying the entire experience, learning like a baby, learning the new steps, learning how to walk, learning how to control yourself, everything, learning how to eat, I think. So it's a new environment, new challenge, and I'm really enjoying this experience with my fellow astronauts here. And it's good to make mistakes, but it's better to see somebody else do that too. So it has been a fun time up here. That is all I have to say. Thank you so much, guys, for making this happen, and I'm sure that we are going to have a great time. And with this, I will hand over to Tibor now. बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज की स्थिति आपातकाल से बदतर, बोले प्रमोद तिवारी। दिल्ली में राजनीति उस समय गर्मा गई जब भाजपा ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया। इस पर
कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि वे आपातकाल की बात करते हैं, लेकिन आज की स्थिति आपातकाल से भी बदतर है। हर जगह डर का माहौल है, संस्थाएं दबाव में है और लोकतंत्र खतरे में है। उन्होंने आगे कहा है कि आपातकाल के बारे में बार बार बात करना बंद करें, इसके बजाय हिमाचल प्रदेश में जो भीषण आपदा आई है उस पर ध्यान दें। वहां लोग मर रहे हैं, बह रहे हैं और तबाही मच। देश के लिए जब कुर्बानियां और बलिदान देता है तो उसी इंदिरा गांधी जिसकी आप आलोचना कर रहे हो, आतंकवाद से लड़ते हुए इन्हीं इंदिरा गांधी ने अपने प्राणों की आहुति दी। प्रणाम करो, श्रद्धांजलि दो भाजपा वालों। आपका रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है आतंकवाद के सामने। लेट जाते हो आप घुटने के बल। आपका रिकॉर्ड अमेरिका से तुलना कर दूं, मोदी जी ने 3 दिन के अंदर ही कल 17वीं बार कहा है ट्रंप ने कि उसने इंडिया और पाकिस्तान का सीज फायर कराया। अब लेट गए, झुक गए, मोदी जी झुक गए। और इंदिरा गांधी ने निक्सन को जो ललकारा था, 7वें बेड़े के साथ जो सलूक किया था, उसे सलूट करो गृह मंत्री के नाते। प्रधानमंत्री अपने इतिहास को इंदिरा गांधी से तुलना मत करो, कांग्रेस से तुलना मत करो, वरना मुझे तुलना करनी पड़ेगी। जब हम कह रहे थे अंग्रेजों भारत छोड़ो, देश को हम आजाद करा रहे थे, तो आपके संगठन अंग्रेजों की फौज में भर्ती होने का संदेश दे रहे थे। हमारा देशभक्ति से भरा इतिहास है। आपका इतिहास कमजोर और कई मौकों पर मैं बहुत ही संयम के साथ इस्तेमाल कर रहा हूं, कमजोरी का इतिहास है, बुजदिली का इतिहास। सर, लेकिन इसको कैसे देखते हैं आप, जो आपने ट्रंप की बात का जिक्र भी किया, उन्होंने 17वीं बार फिर बोला है, आपकी पार्टी कह रही है कि चीन के ऊपर हो, प्रधानमंत्री पे हमला बोला। प्रधानमंत्री को सिर्फ अपनी वाहवाही का शौक है, अपनी वाहवाही के लिए कुछ भी करा देते हैं, चाइना को क्लीन चिट दे देते हैं और जो धमकी देते हैं ट्रंप, उनके आगे सरेंडर हो जाते हैं। आत्ममुग्धता और आत्म प्रशंसा भारत के प्रधानमंत्री की 2 सबसे बड़ी कमजोरी है। उनकी प्रशंसा कर दो तो वो देश का हित दांव पे लगा देते हैं। मैं 2 उदाहरण कोट कर रहा हूं। आज उनके रक्षा मंत्री चीन है ना, इसी चीन ने गलवान घाटी में हमारी जो गश्त थी, जो परमिटेड थी, उसको रोका। उनकी उपस्थिति थी चीन के सैनिकों की, हमारे 21 सैनिक शहीद हुए। प्रधानमंत्री क्या बोले? न कोई आया है, न कोई है, न कोई गया है। एक कमजोर प्रधानमंत्री की निशानी। ट्रंप आज 17वीं बार बोल रहा है। आपके टेलीफोन की वार्ता हो चुकी है 36 मिनट की, उसके बाद बोल रहा है कि मैंने सीज फायर कराया। अरे मोदी जी, इंदिरा जी से प्रेरणा लो और दम लो, ललकार के कहो कि वो गलत बोल रहा है, पर आप गलत इसलिए नहीं बोलोगे, ट्रंप की बात को इसलिए नहीं काटोगे कि आप में काटने का नैतिक साहस नहीं है। मत तुलना करो इंदिरा गांधी की। बात कर रहे हो इमरजेंसी की, आज इमरजेंसी से बुरे हालात। अब देखो ना, गवर्नर 1-1 साल रुके हुए बिल, जो केंद्र का ड्यू है राज्यों का, वो आप देते नहीं हो। कर्नाटक, सारे गैर भाजपाई हुकूमत, आज बाढ़ आई हुई है हिमाचल में। पिछली बार का जो बकाया मिलना चाहिए था अभी तक नहीं मिला। पिछली बार का जो देना था आपको नहीं दिया, कल से आई है। अब मैं कहता हूं ये इमरजेंसी की घंटी बजाना बंद करो। हिमाचल में जो तबाही हो रही है उसके लिए धन अलॉट करो। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की नशा मुक्ति की अपील। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025 के अवसर पर आज दिल्ली में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने शिरकत की और समाज को नशा मुक्त बनाने का संदेश दिया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा है कि नशा केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करता है। हमें मिलकर इस बुराई के खिलाफ लड़ना होगा। युवाओं को जागरूक करना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है।
सभी लोग अपना सीधा हाथ आगे करके शपथ लेंगे। युवा किसी भी राष्ट्र की ऊर्जा होते हैं तथा युवाओं की शक्ति का समाज एवं देश के विकास में। बढ़ते हैं अगली खबर की। किरेन रिजिजू का बयान, लोकतंत्र बचाना हर भारतीय की जिम्मेदारी। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने एक अहम बयान देते हुए कहा है कि लोकतंत्र की रक्षा हर भारतीय की जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हाल ही में कैबिनेट में एक विशेष प्रस्ताव पारित किया गया है। उन्होंने कहा कि 1975 में देश में आपातकाल लागू किया गया था। उस काले दिन को आज 50 साल हो चुके हैं। हम जनता के बीच जाकर संदेश दे रहे हैं कि देश में फिर कभी ऐसा ना लौटे। उस काले दिन को आज 50 साल हो चुके हैं। हम जनता के बीच जाकर संदेश दे रहे हैं कि देश में फिर कभी ऐसा दिन ना लौटे। इसी कारण हम 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में भी मना रहे हैं। कल कैबिनेट में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र जीवित रहे, ये हम सबका जिम्मेदारी है। और मैं आज जब आपसे मुखातिब हो रहा हूं तो इसको किसी पार्टी से जोड़ के ना देखें। लोकतंत्र को बचाना हर एक भारतीय का जिम्मेदारी है। 1975 में जून 25 का आधी रात और जब 26 को सुबह हो रहे थे, उस रात को इस देश में इमरजेंसी थोपी गई। इमरजेंसी का सबसे बड़ा प्रकोप जिसको नुकसान हुआ एक तरीके से मीडिया ही है, क्योंकि सबसे पहले तो मीडिया का गला को घोट दिया गया। इसलिए जब मैं मीडिया से बात कर रहा हूं तो ज्यादा मुझे उजागर करने का कोई आवश्यकता नहीं है, आप भले भांति इसको जानते हैं। आज हम जब 50 साल हो गए हैं इमरजेंसी लागू किए, इसका हम विशेष रूप से जनता का बीच में फिर से एक प्रतिबद्धता के साथ हम इसलिए जा रहे हैं कि दोबारा ऐसा काला दिन कभी ना आए हमारे देश में। इसलिए इसको हम संविधान हत्या दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है। कैबिनेट ने इसलिए पास किया कि कैबिनेट देश को संचालित करने का जिम्मेदारी है और देश का कैबिनेट ने जो रेजोल्यूशन पास किया इसको जन जन तक ले जाना हमारा दायित्व है। इसलिए हिमाचल प्रदेश ये देवभूमि है, बहुत ही खूबसूरत प्रदेश है, इतने अच्छे लोग हैं और यहां अच्छे वातावरण में लोकतंत्र फले और देश भर में शिमला से हिमाचल से अच्छा मैसेज जाए, ये भी मेरा मन में इच्छा है। इसलिए शिमला एक जमाने में अंग्रेजों के जमाने में हमारे देश का इन्होंने समर कैपिटल बनाया था। तो मैं पिछली बार जब यहां आए थे तो मैंने देखा कि कौन से कमरे में वो वाइस रॉय गवर्नर जनरल बैठ करके वो खिड़की से पूरा हिंदुस्तान को देखता था और संचालित करते थे, वो मैंने देखा है। इसलिए शिमला में आपसे मिलकर के ये बात बताना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो जब इमरजेंसी लागू हुआ तो हमारे देश के जितने भी बड़े नेता थे सबको तो जेल में डाल दिया। आम आदमी का जो फ्रीडम है, संवैधानिक अधिकार है, सब समाप्त कर दिया गया। एक परिवार देश से ऊपर बन गया और जब एक परिवार, एक व्यक्ति देश और संविधान से ऊपर हो जाता है तो फिर लोकतंत्र मर जाता है। इसलिए इसको 50 साल पहले की घटना करके भूलना नहीं है, बल्कि इसके याद को और ताजा करके लोगों को पीढ़ी दर पीढ़ी तक बताना चाहिए कि ऐसा हिम्मत कोई नेता, कोई भारत का नागरिक दोबारा ना करे। संविधान का हत्या, संविधान के स्पिरिट को खत्म करने का जो जरूरत की कभी ना हो, ये हम सबका जिम्मेदारी है। मैं विस्तृत रूप से नहीं जाऊंगा क्योंकि बढ़ते हैं अगली खबर की।
भगवंत मान ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने आज चंडीगढ़ में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया है। अपने चिर परिचित शैली में मुखर होते हुए उन्होंने राज्य से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाओं, नीतियों और मुद्दों पर बात की। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य फोकस किस विषय पर था यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री मान ने यह दोहराया कि उनकी सरकार जनता से जुड़े वादों को निभाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोगों ने हम पर विश्वास जताया है और हम उस विश्वास को मजबूत करने के लिए हर स्तर पर काम कर रहे हैं। पर किसी दे घरे सत्थर विछा के चिट्टे रंग दे जां किसी दे घरे साडियां मावां भैणां दियां जिहड़ियां चुन्नियां ने उन्हां दे रंग चिट्टे करन वाले आप 3-3 मंजिलियां 4-4 मंजिलियां कोठियां जां बड़ी बड़ियां प्रॉपर्टियां बना के दीपमाला करके ते महफिलां लाउण, लोकां दी मौतां ते महफिलां लाउण, ये हो नहीं सकता, बर्दाश्त नहीं हो सकता। सो आम आदमी पार्टी का एक गारंटी के रूप में असीं कहा होया सी। टाइम थोड़ा जिहा लग गया क्योंकि प्लैनिंग बनाउण नूं टाइम लग जाता है कि किवें सप्लाई लाइन तो तोड़ देंगे, कोई गल नहीं, ईजी है, पर सप्लाई लाइन तोड़न तो बाद जिहड़े विड्रॉल सिम्पटम्स वाले जिहड़े एडिक्टेड ने उन्होंने कित्थे लैके जावांगे। फिर असीं रीहैब सेंटर अपडेट किए, फिर सानूं पता लग्या कि विच कुछ पुलिस दे भी जिहड़े मुलाजम ने वो रले हुए ने, वो दस दिंदे ने, जिहड़े छोटे लेवल के मुलाजम ने वो दस दिंदे ने कि अज इत्थे छापा पऊगा, उन्होंने दस दिंदे हैं, तो उहदे नाल भी कई सारे जिहड़े ऑपरेशन साडे जां छापे जिहड़े ने फेल होए। सो उन्हां दीयां बहुत बड़े लेवल ते ट्रांसफर कीतियां, फिर लोगों के सहयोग मंगया तां करके फिर थोड़ा टाइम लग गया। तो हुण इस वक्त यह जिहड़ी मुहिम है ये पूरे जोरां ते हुण सानूं लोगों के फोन भी आउंदे है, फीडबैक भी आउंदी है कि बहुत ज़्यादा फर्क पै गया जी। हुण पहलां वाला काम नहीं रहा कि मोटरसाइकिलों ते घूमते हैं, गलियां च घूमते हैं आवारागर्द, जिहड़े नशा बेचण वाले, धीआं भैणां दा बाहर निकलना औखा होया पिया जां किते भी अवेलेबिलिटी है, किते भी किसी किक्कर थल्ले किसी पेपर थल्ले बैठे ने। सो वो जिहड़ा समझ लो इन्हां दा कार्टल सी टुट गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 50 साल पहले की घटना आज भी प्रासंगिक, बोले दिनेश शर्मा। भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कांग्रेस पर कड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि भारत में संवैधानिक व्यवस्था को नष्ट करने वाले कृत्यों को कोई भूल नहीं सकता है। उन्होंने याद दिलाया कि 50 साल पहले आपातकाल के दौरान कई लोगों को बेघर किया गया, कई की जबरन नसबंदी की गई और पत्रकार, शिक्षक और आम लोगों को जेल में डाल दिया गया। दिनेश शर्मा ने यह कहा है कि तानाशाही रवैया आज भी कांग्रेस में दिखाई देता है, वे आलोचना स्वीकार नहीं करते हैं। कर्नाटक में किसी ने एक ट्वीट किया और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई। ये वही तानाशाही वाले लोग हैं जिनकी हरकतें जनता के सामने आनी चाहिए। जैसे हम लोग घृणा की दृष्टि से देखते हैं, वैसे भारत में जो संवैधानिक व्यवस्था को जब कोई ध्वस्त करता है तो व्यक्ति भूल नहीं सकता है कितने लोगों को घर से बेघर कर दिया गया था। 80-80 साल के लोगों को नसबंदी कर दी गई थी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डायमंड हार्बर को समावेशी विकास में नंबर 1 बनाने का संकल्प। डायमंड हार्बर के सांसद ने एक बार फिर जनप्रतिनिधि की जवाबदेही और पारदर्शिता को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने कहा है कि मेरा हमेशा से मानना रहा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि का सबसे बड़ा कर्तव्य उन लोगों के प्रति होता है जिन्होंने हम पर भरोसा जताया। हम उनके द्वारा किए गए हर वादे और हर कदम के लिए जवाबदेह हैं। सांसद ने बताया कि वे वर्ष 2014 से हर साल निषोधो विप्लव नामक पुस्तिका प्रकाशित कर रहे हैं, जिसमें डायमंड हार्बर में हुए विकास कार्यों का पारदर्शी, विस्तृत और सत्यापन योग्य विवरण होता है। उन्होंने कहा कि
आप लोगों ने डायमंड हार्बर को जीत के अंतर में नंबर 1 बनाया और मैं इसे समावेशी विकास के मामले में भी नंबर 1 बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हूँ। बढ़ते हैं अगली खबर की। यूपी सीएम योगी ने कानून व्यवस्था को लेकर की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के लिए शुक्रवार को एक उच्च स्तरीय की बैठक की। बैठक में डीजीपी राजीव कृष्ण, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में हालिया आपराधिक घटनाओं, संवेदनशील जिलों की स्थिति, महिलाओं की सुरक्षा और आगामी त्योहारों के दौरान शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने को लेकर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर सख्ती से अमल हो। बढ़ते हैं अगली खबर की। इंदिरा गांधी को ऐसा क्या कहा कि कर्नाटक में हो गई है एफआईआर। बीजेपी ने 25 जून को इमरजेंसी लगाए जाने के 50 साल पूरे होने पर संविधान हत्या दिवस मनाया। इसी दिन बीजेपी कर्नाटक ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के खिलाफ एक पोस्ट किया, जिसको लेकर अब एफआईआर दर्ज कर ली गई है। साथ ही बीजेपी के इस पोस्ट के खिलाफ अब कर्नाटक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पोस्ट को लेकर बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बाद में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया है। बता दें कि 25 जून को इमरजेंसी दिवस के मौके पर बीजेपी कर्नाटक ने एक आपत्तिजनक पोस्ट किया था। इस पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को एडोल्फ हिटलर से तुलना की गई थी। इस पोस्ट के सामने आने के बाद कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव एस मनोहर ने शिकायत दर्ज कराई थी। बढ़ते हैं अगली खबर की। राजा रघुवंशी हत्या मामले में मृतक के भाई विपिन रघुवंशी का विवादित बयान। राजा रघुवंशी हत्या मामले की जांच जारी है। मृतक राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने मीडिया में आई जानकारी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि मुझे मीडिया के माध्यम से पता चला है कि एक पिस्टल बरामद हुई है, जो या तो बैग से मिली है या नाले के पास। साथ में लैपटॉप या मोबाइल भी मिला है। विपिन ने आरोप लगाया कि गोविंद, जो सोनम के भाई हैं और लगातार मीडिया में आकर कहते हैं कि वे राजा के परिवार के साथ खड़े हैं और राजा के लिए न्याय चाहते हैं, असल में ऐसा क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा, अगर वह सच में मानते हैं कि उनकी बहन ने कुछ गलत किया है और वह इस मामले में आरोपी हैं और अगर वे हमारे साथ हैं तो फिर वे खुलकर कड़ी सजा की मांग क्यों नहीं कर रहे हैं। देखिए, मुझे मालूम पड़ा है मीडिया के माध्यम से, उसमें पिस्टल जो है पिस्टल बरामद हुई है और एक बैग में शायद अपने लैपटॉप या मोबाइल क्या है ये मुझे पता नहीं, दोनों में से एक चीज ये बरामद हुई है नाले में से। भैया, इस पूरे एपिसोड में लगातार जो गोविंद है सोनम का भाई, वो आपकी मदद करने का कह रहा है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहें? देखिए, अब गोविंद जिस प्रकार से मीडिया में कह रहा है मैं राजा के भाई के साथ खड़ा हूँ, राजा को इंसाफ दिलाऊंगा मैं, तो कहीं ना कहीं बोल रहा है। तो हमारा मानना इसमें ये है, तो उनको लग रहा है उनकी लड़की ने गलत करा है, लड़की आरोपी इसमें है, तो उनको उनकी लड़की के खिलाफ जो है कार्रवाई करना चाहिए, उनकी मांग करना चाहिए। ये लड़की जो है हमारी लड़की को फांसी मिलना चाहिए। अभी तो ऐसे उनकी तरफ से बयान आई नहीं अभी तक। ठीक है, मदद कर सकते हैं नहीं कर सकते तब अपना पता नहीं है कि अपन अंतर में तो है नहीं, तो बता सकते चीजें। अब किसके उन्हें क्या खोड़ क्या खोड़नी है उसको पता हो। तो देखिए, लड़की छोड़ दी है, लड़की ने खून भी कर दिया है, ये सब कुछ भारत को पता चल गया, दुनिया मालूम पड़ गया चुका है, तो फिर उनको तो एक तरफ से इनकी लड़की का पिंडदान कर देना चाहिए, जो कि अभी तक करा नहीं है। देखिए, मेरा तो मानना यह है, तो जिस प्रकार से उनकी लड़की ने जो गलती करी है, एक उनकी लड़के को मार दिया है जो उससे शादी कर रही थी, मतलब मेरे भाई को मारने के लिए उसने कहीं भी कोई कसर छोड़ी नहीं है। तो मेरा तो मानना ये होना चाहिए उनके घर में उनको सोनम की कोई भी चीज घर में होने भी नहीं चाहिए उनके पास में।
क्योंकि जो माँ बोल रहा है सोनम हमारी मर चुकी है, तो मरे हुए की कोई चीज घर में होना नहीं चाहिए, तो फिर पिंडदान करना चाहिए कि हमारा भाई मरा है तो हमने उसका पिंडदान करा है। देखिए जिस प्रकार से भी सोनम ने कबूल करा है और ये मीडिया के माध्यम मुझे मालूम पड़ा भी है और वहाँ के एसपी साहब के वाइड भी सुनी मैंने है, उसमें सोनम ने कहा है तो राज और हम जो राज और मैं दोनों प्यार करते थे और हम लोग जो है शादी करने वाले थे, मगर मेरे घरवालों ने शादी होने दी नहीं मेरी है और इसी कारण जो है मैं राजा को मैंने मारा है। नहीं, राज के मम्मी के नाम पे कंपनी खुली हुई है, इसकी जानकारी मुझे है और सोनम बिजनेसमैन बनना चाहती थी मगर उसने राजा को मारा इसके लिए कि राज से प्यार करती थी, वो इसकी जानकारी उसने घर वाले को पहले दे चुकी थी। ये बात सोनम कबूल करी है। क्या भैया शादी के पहले ऐसा कुछ तय हुआ था कि ये काम करेगी सोनम शादी के बाद या इस तरह? नहीं, शादी के पहले जब रिश्ते की बात हुई थी उस टाइम पे हमसे पूछा हमने था सोनम जो है शादी के बाद कभी काम करना चाहेगी तो आप लोग को आपत्ति तो नहीं है? हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ी लिखी लड़की है फिर काम करना चाहती है, कभी तो ऑफिस का भी जा सकती है, कोई दिक्कत हमें नहीं है। सरकार से देखिए एक चीज नई नई खुल के बाहर आ रही है और सोनम ने कॉल भी कर लिया है तो मैं रास्ते प्यार करती थी, इसी जानकारी मैंने अपने घर पे दी थी मैंने, तो इसमें कुल मिला के यही है। तो परिवार ने हमसे बातें छुपाई है, हम लोग अब क्या कर सकते था, ये और बेटा बुला सकते नहीं हम लोग, यही है। तो हम मेघालय पुलिस जो है उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे इसमें, तो इसमें जो भी छानबीन है इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए इसके अंदर। बस बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी बस पलटने से 7 यात्री घायल, एक बच्ची और एक व्यक्ति की हालत गंभीर। यूपी से एक बड़ी खबर सामने आई है। सुबह सुबह सड़क हादसा हुआ है जिसमें एक यात्री ने बताया कि अचानक ड्राइवर को नींद आ गई जिससे बस एक चौड़ी सड़क होने के बावजूद खाई में पलट गई। इस दुर्घटना में सवार सभी यात्री घायल हो गए हैं। यात्री ने कहा है कि मेरे साथ 7 लोग थे जिनमें से 3 चल सके हैं लेकिन 4 को चोटें गंभीर है। एक लड़की को काफी चोट आई है और एक व्यक्ति का घुटना पूरी तरह से टूट गया है। परपुर से दिल्ली जा रहे थे, अचानक सुबह में ड्राइवर का आंख लग गई, पूरी चौड़ी रोड है, उसके बाद आंख लग गई, गाड़ी खारी में पलटी, 4 पलटनियां खाई है, सब आदमी घायल है। हमारे साथ में 7 आदमी थे जिसमें 3 गोटा है जो चलने के लायक है, बाकी 4 गोटा घायल है। अच्छा, एक ये लड़की है ये पूरा घायल है, एक इनका पूरा घुटना फूट गया हुआ है कि इतनी चौड़ी रोड होते हुए उस साइड में लाके वो नींद पड़ी, उसके आंख लगी, वो पलटी मार दिया उसने। बिहार से निकली थी 3 बजे कल, दोपहर 3 बजे। अच्छा, और रात सुबह 3 बजे की घटना? हाँ, ये सुबह 3:30 बजे की घटना। पूरी फूल थी बस, नहीं उससे ज्यादा होगा 100 के आसपास, पूरा बस फूल था। टेबल लगा देते हैं, अच्छा, टेबल पे बैठाते हैं, केबिल में भर के बैठाते हैं, उसके बाद ड्राइवर के बगल में बैठाते हैं। जी, मैं नेपाल के रहने वाला हूँ, दिल्ली में काम करता हूँ, गरीब आदमी हूँ, कमाने जा रहा था। अचानक ये गाड़ी मतलब कहीं पलटी मार लिया। मैं तो नीचे भी नहीं गिरा हूँ, मैं तो रोड पे गिरा था। रोड पे कोई भगवान के ट्रक वाला भवानी बन के आया, ट्रक वाला बन के वो उठा के ले गया, मेरे को मालिश तालिश किया। मेन रोड पे मैं सो रखा था। ये कम से कम 3 बजे करीब बात है। कितने लोग सवार थे बस में? बस वो रास्ता होते उसके साइड में रेलिंग होती है, उसमें बस स्टैंड हुआ है। रात के समय था, 5 बजे यहाँ पे पहुँचाओ और रात के समय उसमें ठोकर लगा था और बस 3 बार पलटी मारी थी और उसका नीचे का उल्टा हुआ बस था, उसमें सारे हादसा हुआ है। बस कहाँ? बस बिहार से दिल्ली जा रही थी। 175 रहे होंगे। कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना दी गई कि एक डबल डेकर बस एक्सप्रेस वे पे किलोमीटर संख्या 103 और 104 के बीच में वो पलट गई है, सड़क के किनारे पे दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस फोर्स थाने से और उच्चाधिकारीगण मौके पर पहुंचे और वहां जाके देखा, स्थिति का जायजा लिया तो बस सड़क के किनारे की तरफ जो खाई में पलटी हुई थी, वहां से तत्काल एम्बुलेंस बुलवाकर सबको घायलों को पीजीआई में एडमिट कराया गया है, जिनमें से 2 लोगों की मृत्यु हो गई है और करीब 50 लोग के करीब घायल हैं, जिनको एडमिट कराया गया, पीजीआई में इलाज चल रहा है और कुछ को ज़्यादा, कुछ को थोड़ा ज़्यादा चोट है। करीब अभी सामान उनका यहीं पे पीजीआई में ले जाया गया है और उनको जिनको कम चोट है उनको उनके गंतव्य पर भेजने की व्यवस्था की जा रही है। बस बिहार दरभंगा से दिल्ली जा रही थी, डबल डेकर बस है और इसमें करीब 67 मैं ड्राइवर कंडक्टर के मिला के 67 लोग सवार थे। नहीं, देखिए उसमें छोटे बच्चे भी थे जो गिनती में नहीं आते हैं, छोटे बच्चे भी थे, 3 साल 2 साल इस तरह के बच्चे भी थे
उनको मिला के 67 लोग हुए। बढ़ते हैं अगली खबर की। निर्दोषों का खून बहाने वालों को नहीं छोड़ेंगे, राजनाथ सिंह का कड़ा संदेश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के किंगदाओ में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में पहलगाम हमले पर भारत का रुख साफ करते हुए कड़ा संदेश दिया है। बैठक के दौरान उन्होंने कहा है कि भारत निर्दोषों का खून बहाने वालों को कहीं नहीं छोड़ेगा। जो लोग आतंक फैलाते हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। राजनाथ सिंह की यह टिप्पणी जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले, जिसमें कई निर्दोष नागरिकों की जान गई, के संदर्भ में आई है। Actually, I believe that the biggest challenge that we are facing in our region are related to peace, security, and trust deficit. And the root cause of these problems is increasing radicalization, extremism. बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रुद्रप्रयाग में बड़ा हादसा, अलकनंदा नदी में गिरी बस। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में एक यात्री टेम्पो ट्रेवलर अनियंत्रित होकर उफनती अलकनंदा में जा गिरा। ट्रेवलर में 19 लोग सवार थे, जिनमें अब तक 2 लोगों की मौत होने की सूचना है। वहीं 11 लोग पानी में बह गए। 8 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के भी घटनास्थल पर पहुंचने की सूचना है। हादसे के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने बताया कि वाहन में राजस्थान के उदयपुर के एक ही परिवार के 17 सदस्य सवार थे। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार के अनुसार अब तक 9 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, जिनमें से 2। आपका भाजपा पर पलटवार आपातकाल की निंदा करने वाली बीजेपी खुद कर रही है वही का। 25 जून को भारतीय जनता पार्टी द्वारा संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाए जाने पर आम आदमी पार्टी ने कड़ा पलटवार किया है। आप दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि भाजपा की आपातकाल प्रदर्शनी में क्या दिखाया गया है, यह कि किस तरह बुलडोजर से झुग्गियां तोड़ी गई है और आप भी वही कर रहे हैं। ठीक आपातकाल की सालगिरह पर वाजिरपुर में करीब 300 झुग्गियां ध्वस्त कर दी गई। काल की जो प्रदर्शनी भारतीय जनता पार्टी और इनकी सरकारों ने लगाई है, उसमें क्या दिखाया है? उसमें दिल्ली में ये दिखाया गया कि जगह जगह गरीब लोगों के झुग्गी झोंपड़ियां बुलडोजर द्वारा तोड़ी गई। आप भी वही कर रहे हो। कल जब आपातकाल की बरसी थी, कल भी आपने वजीरपुर के अंदर करीब 300 गरीब लोगों की झुग्गी झोपड़ी तोड़ दी और आपातकाल में जहां झुग्गी तोड़ी गई थी वहां तो उनको तुर्कमान गेट वालों को मेरे यहां कालका जी के अंदर जो है जगह दी गई, जमीन दी गई, रहने के लिए घर दिए गए। आपने तो वो भी नहीं दिया। आप तो उस कांग्रेस की सरकार से भी बदतर निकले। दूसरी आपातकाल की क्या दिखती है कि सब राजनीतिक विरोधियों को एक एक करके जेल में डाल दिया गया। आपने भी वही किया। आपने अरविंद केजरीवाल को डाला, मनीष सिसोदिया को डाला, संजय सिंह को डाला, पी चिदम्बरम को डाला, सत्येंद्र जैन को डाला। आपने किसको छोड़ा? तीसरा दिखता है बोलने की आजादी नहीं थी। आपने भी बोलने की आजादी के ऊपर सारे पहरे लगा दिए। कोई आदमी आपसे सवाल कर लेता है, आप कहते हैं इसका ढूंढो, कुछ इसका कुछ निकालो, कुछ देखो कि कैसे सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स से इसको जो दबाया जा सकता है। बीबीसी ने आपके खिलाफ स्टोरी कर दी, आपने बीबीसी के ऊपर छापा मार दिया, उसको हैरेस करना शुरू कर दिया। आपने कौन सी कमी छोड़ी? आपने तो जो कुछ उस समय हुआ आपने वो सब करके दिखाया। हाँ, मगर आपके अंदर ये कला है कि आप उनकी बरसी भी मना सकते हैं और आप अपने आप को प्रजातांत्रिक भी कह सकते हैं। दिल्ली में किस तरीके से आपने चुनाव लड़ा और जीता है, ये दिल्ली का हर आदमी जानता है। साड़ियां आपने बांटी, जूते आपने बांटे, चप्पल आपने बांटी, सोने की चेन आपने बांटी, पैसे आपने बांटे। आपने क्या नहीं किया? डराया आपने, धमकाया आपने, पुलिस के आपके लोगों ने बंद किया लोगों को। तो आपने कोई कमी नहीं छोड़ी। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक के बाद ही खबरें मेरे सहयोगी मीनल के साथ। तब तक के लिए देखते रहिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज।